Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to study paper 1, unit number 6, that is logical reasoning and Indian logic. The topic is going to be informal fallacies. So we are going to discuss all the informal fallacies which are asked in UGC NET exam, and I have tried to cover almost 19 to 20 fallacies which are asked every time. हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आता है. मैक्सिमम यू विल सी कि हर शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं यहाँ से. सो आई वुड सजेस्ट यू टू सिट विद पेन एंड पेपर एंड नोट डाउन ऑल द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स रिलेटेड टू ईच fallacy. If you have not joined our Telegram channel, you can join it. You can simply search UGC NET GRF Success Master on Telegram and you will find that there are 930 plus learners. There we conduct quiz of paper 1 plus paper 2. Paper 2 is related to commerce and management. So you can definitely join this channel and you are going to benefit a lot from it, as we also share notes here and important topics are also shared, plus quizzes and PYQs are conducted. So this is about me. So let us begin. What do you mean by informal fallacy? See, fallacy means that there is some error. Okay? Informal fallacies are the errors in the reasoning, means in the content or the context of an argument. So, informal fallacies are related to the content. And if they ask you that formal fallacies are related to the error, in which context it is related to the structure. Yes, in formal fallacy the structure is not proper, and in informal fallacies there are errors in the content or the context of an argument rather than a flaw in the structure of the argument, because structure of an argument is a formal fallacy. Okay, if there is a flaw in the structure of an argument, then that is related to the formal fallacy. Informal fallacy is related to the content. Keep this in mind. Content or context. So let us study one by one. First is ad hominem. Ad hominem fallacy means when you attack the person. You can see this image. A person is being attacked. Means you are attacking the person rather than an argument. I have highlighted the keywords for you. You can note this down. Attacking the personal characteristics of the person rather than the argument itself. It is a form of personal attack that focuses on the person, their background or group affiliations rather than addressing the issue at hand. Let us understand this with an example. Suppose you can't trust what she says about climate change because she is a politician. So you are not addressing the issue here. You are just saying that he or she is a politician, and so you are attacking the person itself. Okay, rather than attacking the argument or discussing about the argument, you are attacking the person. The way to remember is, you will see that if you read from the backward, yes, MEN. So attacking the man or attacking the person. So it becomes men, yes, or we can relate it to the persons, yes. So this way you can remember that ad hominem is related to attacking the person. Now we just read another example. I think we should focus on renewable energy to combat the climate change. Okay, person A says this. And what did person B say? Of course you would say that you are just a clueless activist, not an expert. So the person B is telling person A that you are not an expert. So this means that he is attacking the person. So we conclude that this is ad hominem fallacy. Means not addressing the argument but attacking the person. Okay. Next is straw man fallacy. Now here you attack the argument, not the person. You are misrepresenting the argument to make it easier to attack. So let us understand the example first.
we should have stricter environmental regulations. Person A says this, but then person B says, oh, you want to destroy the jobs and shut down all the factories with the stricter environmental regulations? The person A did not mean this, but person B, what is he doing? He is misrepresenting an argument. आर्ग्यूमेंट को गलत समझ लेना. तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए के आर्ग्यूमेंट को गलत समझा, उसको मिसरिप्रेजेंट किया. सो दैट इज स्ट्रॉ मैन फैलेसी. एड होमिनम में हम क्या कर रहे थे? जो फर्स्ट फैलेसी हमने पढ़ा था वहां पे हम पर्सन को अटैक कर रहे थे कि वो क्या है, वो पर्सन खुद क्या है. यस, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम आर्ग्यूमेंट पे फोकस कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट को हम गलत समझ रहे हैं ताकि वो हमारे लिए इजी हो जाए उसको अटैक करना. यस, सो इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, द पर्सन डिस्टॉर्ट्स इट by exaggerating or oversimplifying or even fabricating claims that were never made. क्योंकि पर्सन ए ने तो ये कभी कहा ही नहीं कि वो जॉब्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है. He was just talking about the stringent or stricter environmental regulations. So this fallacy is used to create a weaker, easily disproven version of the opponent's position. Okay, opponent's position, not the person. Effectively attacking straw man instead of the real argument. We can see another example here. This girl is saying that cats are great pets. They are very affectionate and it requires very low maintenance. Now what person B this girl is thinking? You mean to say that you hate dogs? Person A did not say that she hates dogs. She is just saying that cats are easier to maintain. But this girl, person B, she misrepresented her argument so that it becomes easier to dismiss. Okay. Third one is slippery slope. This fallacy suggests that one small step will inevitably lead to a chain of related events, usually with negative outcomes. मतलब अगर आप एक चीज़ अगर आप बोलोगे तो वहाँ से फिर आप वो दूसरी चीज़ पे कर जाओगे, दूसरी से फिर आप तीसरी चीज़ पे जाओगे. मीन्स एक चेन क्रिएट हो जाएगी. ओके, सीरीज ऑफ इवेंट्स, इसका मतलब है कि सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप. वो फिर अगर एक इवेंट इनिशिएट हुआ देन उसके बाद वो चेन क्रिएट हो जाएगी और उसको रोकना आपके लिए कंट्रोलेबल नहीं होगा. ओके, आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एग्ज़ाम पास नहीं किया, ओके, तो आप कॉलेज में नहीं जा पाओगे. यस, स्कूल एग्जाम नहीं पास किया तो कॉलेज में नहीं जा पाओगे, कॉलेज में नहीं जाओगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी. यस, सो इस तरह से एक चेन क्रिएट हो गई. सो दैट इज स्लिपरी स्लोप. फॉर एग्जाम्पल, वी शुड रेगुलेट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू प्रिवेंट हार्मफुल मिस इन्फॉर्मेशन. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रेगुलेशन ज़रूरी है ताकि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना हो. तो पर्सन बी क्या कहता है कि अगर हम सोशल मीडिया को रेगुलेट करेंगे तो फिर तो गवर्नमेंट हर एक चीज़ को कंट्रोल करेगी और इवेंचुअली क्या होगा, हम अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच ही खो देंगे. तो ये क्या हुआ? सीरीज ऑफ इवेंट्स ओके क्रिएट हुए जिसके कि नेगेटिव आउटकम्स होंगे. नेक्स्ट कम्स हेस्टी जनरलाइजेशन. हेस्टी मीन्स बहुत जल्दी. जनरलाइजेशन मीन्स आप किसी चीज़ को पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर रहे हो. ओके, A hasty generalization is a logical fallacy. Okay, क्योंकि informal fallacy है ना, तो इसमें logic, content और context की बात होती है. तो hasty generalization is a logical fallacy where a conclusion is drawn from a small sample and you generalize it to a broader population. आप छोटे से sample के base पे वो चीज़ एक बड़ी population पे apply कर देते हो कि अगर सैम्पल पे ये चीज़ ट्रू है या सैम्पल पे ये चीज़ अप्लाई होती है तो पॉपुलेशन पे भी अप्लाई होगी. मान लो आपने सिर्फ 1 या 2% को देखा कि वो स्मोक कर रहे हैं, तो आप उसके बेसिस पे कंक्लूड कर रहे हो कि सारे ही जो मेल हैं, जो मेल मेंबर्स हैं, वो सारे स्मोक करते हैं. सो दिस इज़ नॉट ट्रू. जैसे कि आप 2 टीनेजर्स को मिले जो रूड थे, तो वो 2 टीनेजर्स के बेसिस पे आपने कंक्लूड कर दिया कि आजकल तो टीनेजर्स में रिस्पेक्ट है ही नहीं, दे डोंट गिव रिस्पेक्ट. तो ये फैलेसी है
क्योंकि ऐसा तो ट्रू नहीं है कि अगर आप छोटे से सैम्पल के बेस पे आप कोई चीज़ पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर दो, सो दिस इज अ फैलेसी. सो हेस्टी जनरलाइजेशन मीन्स मेकिंग अ कंक्लूजन फ्रॉम अ सैम्पल साइज दैट्स टू स्मॉल और फ्रॉम एविडेंस दैट्स नॉट representative. I hope it is clear. Next is appeal to emotion. Appeal to emotion means it is a general category of many fallacies that uses emotion in place of a reason to win an argument. आप इमोशंस का यूज़ करके आर्ग्यूमेंट जीतना चाहते हो, मतलब आप यहाँ पे एक तरह का मैनिपुलेट कर रहे हो, आप डोमिनेट करना चाहते हो, आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हो. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, first person says that we should increase funding for animal shelters. So second person says, how can you say that? Don't you care about the poor innocent puppies suffering every day? इसका दूसरा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि you must have seen the advertisements. Yes? तो advertisements में आपने देखा होगा कि sale is ending soon. Yes? All of you will agree with this कि सेल बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है. तो अब आपको क्या क्रिएट किया जा रहा है, क्या चीज़ क्रिएट की जा रही है आपके माइंड में? आपको इंड्यूस किया जा रहा है अर्जेंसी, आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट फील होगा, फोमो. यस, कि हाँ मुझे भी ये चीज़ खरीदनी चाहिए. तो वो क्या कर रहे हैं? आपके इमोशंस का यूज़ कर रहे हैं. यस, सो दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू. सो दिस इज अपील टू इमोशन. मीन्स आप इमोशन का यूज़ करके किसी आर्ग्यूमेंट को जीतना चाहते हो. Next is red herring fallacy, and this is very important. Remember the other names also. Ignoratio elenchi, you have to remember this name also. A red herring fallacy is a logical fallacy that involves introducing an irrelevant topic to divert the attention. मतलब जिस आर्ग्यूमेंट के बारे में या जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, आप उस टॉपिक पे बात ना करके उसको आप क्या कर रहे हो? डाइवर्ट कर रहे हो. यू आर डाइवर्टिंग द अटेंशन फ्रॉम द टॉपिक और द आर्ग्यूमेंट विच इज बीइंग डिस्कस्ड. सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन दैट अटेम्प्ट्स टू कंफ्यूज और मिसलीड द ऑडियंस बाय शिफ्टिंग द फोकस अवे फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट. जैसे कि यहाँ पे आप देखो, द मदर इज सेइंग इट इज़ टाइम टू डू योर होमवर्क. But what the child is saying, obviously he wants to divert the attention. So what the child is saying, we had pizza for lunch today. So that is red herring, means diverting the attention. So these are the key words, the red ones, you can note it down and kindly write the other names also. Next comes 2Q fallacy. So here what happens, this is called U2 fallacy, U2 in Latin, okay. It is a type of ad hominem attack where someone responds to criticism by pointing out the critic's hypocrisy or inconsistency. Means यहाँ पे आप criticism का जवाब criticism से दोगे. आपने किसी को कुछ बोला कोई काम ना करने के लिए और उसने आपको जवाब दिया कि आप मुझे क्यों मना कर रहे हो, आप खुद भी तो ये चीज़ करते हो. As you will see in this example, too much smoking is bad for your health. Okay, this person says to this boy, too much smoking is bad for your health. Then this child says, you look very healthy. This can't be true. You too smoke, dad. Yes, तो अगर फादर ने कहा अपने सन को कि स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, तो उसने क्या जवाब दिया कि आप खुद भी तो स्मोक करते हो. सो दिस इज 2Q fallacy, मीन्स यू आर आंसरिंग द क्रिटिसिज्म विद क्रिटिसिज्म. यस, आपकी किसी ने बुराई की तो आप दोबारा उनकी बुराई कर रहे हो, उन्हीं पे आप क्लेम कर रहे हो दोबारा. यस, सो इट इज़ अ लॉजिकल फैलेसी बिकॉज इट डजंट निगेट द ओरिजिनल क्लेम बट रादर शिफ्ट द फोकस टू द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन मेकिंग द क्लेम. तो यहाँ पे उल्टा दूसरे को ही ब्लेम कर रहे हो आप. नेक्स्ट कम्स द सर्कुलर आर्ग्यूमेंट. सर्कुलर आर्ग्यूमेंट इज इम्पॉर्टेंट, स्पेशली बेगिंग द क्वेश्चन, ये वर्ड बहुत यूज होता है. पेटिशियो प्रिंसिपी, ये भी वर्ड यूज होता है. अज्यूमिंग द इनिशियल, दिस फैलेसी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. सर्कुलर रीजनिंग फैलेसी में क्या है, यहाँ पे कंक्लूजन को रिपीट किया जाता है, रेंडरिंग द आर्ग्यूमेंट लॉजिकली इनकोहेरेंट.
The argument's premise assumes the truth of the conclusion it's trying to prove, creating a loop. मीन्स एक लूप क्रिएट हो जाती है, आप घुमाकर वही बात कह देते हो, बट एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, वो जो आर्ग्यूमेंट है वो कुछ प्रूव नहीं करता. जैसे कि पेरेंट ने कहा कि इट इज़ टाइम टू गो टू बेड. अब चाइल्ड ने पूछा कि क्यों, तो पेरेंट ने कहा क्योंकि बेड टाइम है. अब ये एक्चुअली यहाँ पे तो कुछ प्रूव नहीं हो रहा है, आर्ग्यूमेंट नेवर एक्चुअली प्रूव्स एनीथिंग हियर, बट एक लूप क्रिएट हो गया. यस, आप कंक्लूजन को ही रिपीट कर रहे हो. नेक्स्ट कम्स फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन. जब आप कोई चीज़ कंपोज करते हो तो आप ऑब्वियसली आप कैसे स्टार्ट करोगे, आप पहले पार्ट बाय पार्ट उस चीज़ को कंपोज करोगे. तो फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन में क्या है कि अगर कोई चीज़ मीन्स इफ समथिंग इज ट्रू फॉर द पार्ट देन इट विल बी ट्रू फॉर द होल एज वेल. अगर कोई चीज़ पार्ट पे अप्लाई होती है तो वो होल पे भी अप्लाई होगी. लेट मी गिव वन एग्जाम्पल टू यू. सपोज टायर ऑफ अ कार इज मेड अप ऑफ रबर. ओके, तो आप इस बेसिस पे क्या कंक्लूड करोगे कि अच्छा पूरी कार भी फिर रबर की ही बनी होगी. यस, पूरी कार भी रबर की ही बनी होगी, बट क्या ये ट्रू है? नहीं. सो दिस इज फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन. ओके, so the fallacy of composition is an informal fallacy that arises when one infers that something is true for the whole from the fact that it is true for the part of the whole. Means कोई चीज़ whole के लिए भी true है. क्यों true है? क्योंकि वो part के लिए true है. But ऐसा नहीं होता, इसीलिए तो ये fallacy है. See this example. One standing, ठीक है, one person is standing, so here all of them are standing. If I stand, I can see better. So if we stand, we can all see better. तो जो पार्ट के लिए ट्रू है वो होल के लिए भी ट्रू होगी. ओके, नेक्स्ट कम्स फैलेसी ऑफ डिविजन. फैलेसी ऑफ डिविजन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन. ये फैलेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन एंड फैलेसी ऑफ डिविजन. Fallacy of division means that if something is true for the whole, then क्योंकि डिवाइड कैसे करेंगे हम, पहले जनरल आप देखो कि कोई जो चीज़ जनरल पे अप्लाई होती है वो चीज़ स्पेसिफिक पे भी अप्लाई होगी. यस, कॉम्पोजिशन में क्या था, आप कंपोज करते हो तो कैसे कंपोज करोगे, पार्ट बाय पार्ट, फिर आप होल पे जाओगे. बट इन डिविजन इट इज होल पे जो चीज़ ट्रू है वो पार्ट पे भी ट्रू होगी. ओके, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है. जैसे कि इफ आई से दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर मेड अप ऑफ एटम्स. यस, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मेड अप ऑफ एटम्स. एटम्स आर इनविजिबल. यस, सो ह्यूमन्स आर ऑल्सो इनविजिबल. नाउ यू टेल मी, इज दिस ट्रू? नो. सो दिस इज अ फैलेसी. अनदर एग्जाम्पल इज गिवन हियर. ए इज अ पार्ट ऑफ बी. मीन्स बी यहाँ पे क्या है, होल. अब B की एक प्रॉपर्टी है X, तो अगर A इज अ पार्ट ऑफ B और B क्या है, होल, अब हम क्या कहेंगे कि B की प्रॉपर्टी X है, तो ये प्रॉपर्टी क्योंकि B की है ना, तो ये A की भी प्रॉपर्टी होगी. ओके, बट दिस इज नॉट ट्रू. क्या पता वो A की प्रॉपर्टी ना हो. सो फैलेसी ऑफ डिविजन एंड फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन इज इंपॉर्टेंट. फैलेसी ऑफ डिविजन का आप एक अनदर एग्जाम्पल भी ले सकते हो. इंग्लिश पीपल आर गुड एट फुटबॉल. तो ये एक जनरल आइडिया है. यस, या होल पॉपुलेशन पे ये चीज़ अप्लाई हो रही है कि इंग्लिश पीपल आर गुड एट फुटबॉल. अब हम एक स्पेसिफिक एक पार्ट पे चीज़ अप्लाई कर रहे हैं कि जॉन इज एन इंग्लिश, सो जॉन इज ऑल्सो गुड एट फुटबॉल, बट ज़रूरी तो नहीं है. सो दिस इज अ फैलेसी. ओके, सो हियर it is written division versus composition. You can read or you can take a screenshot also if you don't want to write. But if you will write, then definitely you will learn the things faster and you can revise it easily. Next comes appeal to authority. Authority means कोई ऐसा person, कोई ऐसा authoritative figure जिस पे आप trust करते हो कि अगर उस person ने ये बात कही है तो ये बात सही होगी. Means जो expert का view है वही आपका व्यू है. What others think you don't care. अगर एक्सपर्ट ने कहा है तो ये चीज़ सही होगी, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसीलिए ये फैलेसी है. रिमेंबर द अदर नेम्स, आर्ग्यूमेंटम, एड, वर्कोंडियम एंड
It is also called appeal to authority. Then what happens here is claims a statement to be true solely because an authoritative figure made it without providing any evidence. कोई प्रूफ एविडेंस नहीं है उस चीज़ का, बट आप उस चीज़ को मान रहे हो क्योंकि वो किसी अथॉरिटेटिव पर्सन ने कही है, किसी सपोज एग्जांपल जैसे किसी डॉक्टर ने कहा है कुछ या प्रोफेसर ने कहा है, तो आप मान लेते हो कि वो सच ही होगा. ओके, नेक्स्ट कम्स एड पॉपुलम. अनदर नेम इज बैंडवैगन. बैंडवैगन मीन्स यू डू व्हाट अदर्स आर डूइंग. यस, भेड़ चाल जिसे हम कहते हैं कि जो बाकी सब कर रहे हैं. सी दिस पिक्चर, यहाँ पे सब इस कार्ट में है तो ये भी उसी को फॉलो कर रहा है और ये भी उसी कार्ट में चढ़ना चाहता है. ठीक है, जो बाकी कर रहे हैं वही आप कर रहे हो. इफ सपोज अदर पीपल आर परचेजिंग एक्सपेंसिव फोन्स, यू आर ऑल्सो परचेजिंग. ओके, सो bandwagon fallacy, also known as appeal to popularity or argumentum ad populum, is a logical fallacy where someone claims something is true or good solely because it is popular. यहाँ पे पॉपुलैरिटी की बात है. यहाँ पे अथॉरिटी में क्या था, कोई पर्सन था. रिमेंबर दिस, किसी पर्सन ने वो बात कही तो आप उसको ट्रू मानोगे. यहाँ पे क्या है, वो चीज़ पॉपुलर है या वाइडली एक्सेप्टेड है, इसीलिए आप उसको फॉलो कर रहे हो. एवरीवन बिलीव्स इट, सो इट मस्ट बी करेक्ट, बट कोई एविडेंस तो है नहीं. ओके, नेक्स्ट इज फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन. इक्विवोकेशन मीन्स दैट स्पीकिंग इन सच अ वे दैट इज इंटेंशनली नॉट क्लियर. बेसिकली यू वांट टू हाइड द ट्रूथ. ओके, दैट इज इक्विवोकेशन. सो इक्विवोकेशन फैलेसी कैन बी डिफाइंड एज अ लॉजिकल फैलेसी in which a term or a phrase is used multiple times. Remember this, कोई टर्म अगर आप दोबारा दोबारा यूज कर रहे हो और वो डिफरेंट मीनिंग कन्वे कर रहा है वो टर्म आपका, तो उसे हम कहते हैं इक्विवोकेशन फैलेसी. मतलब आपके आर्ग्यूमेंट में एक पार्ट में तो कोई और मीनिंग निकल रहा है और उसी आर्ग्यूमेंट के दूसरे पार्ट में कुछ दूसरा मीनिंग निकल रहा है, इसीलिए इसे एम्बिग्यूटी फैलेसी भी कहते हैं. मतलब डबल मीनिंग. यस, एम्बिग्यूटी मीन्स फॉर डबल मीनिंग. यस, इसीलिए इसे एम्बिग्यूटी फैलेसी भी कहते हैं. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम. आई हैव द राइट टू वॉच द रियल वर्ल्ड. अब यहाँ पे राइट का मतलब क्या है, लीगल. यस, अब देयरफॉर इट इज राइट फॉर मी. अब यहाँ पे राइट फॉर मी मतलब क्या है कि जस्टिफाइबल है, मोरालिटी के बेसिस पे आपके लिए सही है. तो यहाँ पे एक वर्ड राइट के दो मीनिंग निकले, तो ये क्या हो गया, फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन. अब जो ये वाला एग्जाम्पल है ना, ये PYQ है. अ माउस इज एन एनिमल, देयरफॉर अ लार्ज माउस इज अ लार्ज एनिमल. तो आप रिपीट कर रहे हो चीज़ें, सो इट इज़ फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन. क्योंकि यहाँ पे था इट इज़ अ फैलेसी इन विच अ फ्रेज इज यूज्ड मल्टीपल टाइम्स to convey the different meanings. Okay, next comes causal fallacy. Causal fallacy is also called false cause or post hoc ergo propter hoc fallacy. Okay, remember the names. False cause, generally यही false cause या causal ही आता है. ये नेम उतना नहीं अभी तक पूछा गया है, but still you can just remember. So यहाँ पे क्या होता है कि first event must have caused the second event. कोई फर्स्ट इवेंट हुआ होगा, उसके वजह से सेकंड इवेंट हुआ. मान लो जैसे आपने जिस दिन प्लांट्स को पानी दिया उसी दिन बारिश हो गई, तो आप क्या कहोगे कि आज मैंने प्लांट्स को वाटर किया, इसी वजह से बारिश हुई है. बट क्या ये ट्रू है? नो, इट हैज़ नो रिलेशन. यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट तो है नहीं. बेसिकली यहाँ पे एसोसिएशन है, कोरिलेशन है, कॉजेशन नहीं है. कॉजेशन मीन्स कॉज एंड इफेक्ट. So this fallacy is often based on correlation rather than causation. Causation means cause and effect relationship. But यहाँ पे cause and effect relationship तो नहीं है. क्या प्लांट्स को पानी देने पे ही बारिश हुई है? No, it has no relation. Similarly, you can see another example here. Believing that wearing a specific jersey will guarantee your team's win. या मान लो आपने 7 नंबर की जर्सी पहनी है, इसी वजह से आपकी टीम जीती है क्या? It has no relation. So it is a causal fallacy. Okay. Next is fallacy of accident. ये भी पूछा जाता है. Fallacy of accident. It is also called
sweeping generalization. It occurs when a general rule is incorrectly applied to a specific case that has an unusual exceptional feature that makes the rule inapplicable. Let us understand with an example. आपने generally conclude किया कि birds can fly. Yes, ये तो true है, लेकिन exception भी तो है. Yes, emus जो है वो नहीं fly करते, वो तो flightless bird है, तो exception है. बट आप क्या कर रहे हो, आप इस एक्सेप्शन को इग्नोर कर रहे हो और कहते हो कि अगर बर्ड्स फ्लाई करते हैं तो एमयू भी फ्लाई करेगा. बट दिस इज नॉट ट्रू, सो इट इज अ फैलेसी. मान लो अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, इफ सपोज जनरली इट इज सेड दैट वी शुड ड्राइव स्लो. यस, हमें धीरे गाड़ी चलानी चाहिए. बट अगर मान लो आपको किसी को हॉस्पिटल लेके जाना है, तब आप क्या करोगे? तब तो आप धीरे गाड़ी नहीं चलाओगे. ओके, क्योंकि वो सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, तो ये एक्सेप्शनल केस आ गया. बट आप क्या कर रहे हो, अगर हॉस्पिटल लेके जाना है तब भी आप गाड़ी स्लो चला रहे हो, तो ये तो गलत हो गया ना, तो इसीलिए फैलेसी है. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप एक्सेप्शन को इग्नोर कर रहे हो. एक्सेप्शन को इग्नोर करके जो चीज़ जनरल पे अप्लाई होती है, जो जनरल एक रूल है, आप उसको स्पेसिफिक चीज़ों पे भी अप्लाई कर रहे हो, एक्सेप्शंस को इग्नोर करके. सी, इट इज रिटन इन द सेकेंड पैराग्राफ, विदाउट कंसिडरिंग दैट द स्पेसिफिक केस हैव यूनिक सर्कमस्टांसेस दैट मेक द रूल नॉट फुली एप्लीकेबल. जो रूल था कार ड्राइविंग का, वो हॉस्पिटल ले जाने वक्त अप्लाई नहीं होता. यस, देन यू विल ड्राइव फास्ट. बट आप कह रहे हो कि नहीं, हमें स्लो चलाना चाहिए, तो हॉस्पिटल जाते वक्त भी हम स्लो ही चलाएंगे चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो. तो ये तो फिर फैलेसी हुई. यस, दिस फैलेसी इज आस्क्ड, इट इज इंपॉर्टेंट. फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट. नेक्स्ट कम्स अनदर फैलेसी, वेरी इंपॉर्टेंट वन, फॉल्स डाइकोटोमी. इसके तो नेम्स ही बहुत है. फॉल्स डाइकोटोमी, आइदर ऑर फैलेसी, फॉल्स डायलेमा. डायलेमा में आप कब होते हो? जब आपको आइदर और या चॉइस करनी हो टू ऑप्शंस में. अब ये टू ऑप्शंस में चॉइस करना फैलेसी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं. यस, या तो आप स्कूल जाओ, ओके, या तो आप स्कूल जाओ, या तो आप अनएम्प्लॉयड रहो. तो क्या ऐसा है, ज़रूरी है कि अगर आप स्कूल नहीं जाओगे तो भी आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगे? देर आर मैनी बिजनेसमैन, यस, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, जिन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट नहीं की, कॉलेज लाइफ कंप्लीट नहीं की, बट स्टिल दे आर सक्सेसफुल. तो आप बाकी चीज़ों को, बाकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उनको इग्नोर कर रहे हो और आप सिर्फ 2 चीज़ों में फंस के रह गए हो कि आइदर और में, कि बस यही 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इग्नोरिंग द अदर अपॉर्चुनिटीज़ और द अदर ऑप्शंस अवेलेबल. So what happens in false dichotomy? Only 2 options are focused on as if they are the only possibilities, but when in reality other options also exist. So it is a complex, it narrows a complex situation to either or choice, often leading to an incomplete or misleading understanding of the issue. Another example is also given here. जैसे कि आप क्या कर सकते हो, either you can install more security cameras, या तो ज़्यादा और कैमरास लगाओ, या तो विजिटर्स को ही बैन कर दो. बट क्या ये दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है? क्या कोई और थर्ड ऑप्शन अवेलेबल नहीं है? थर्ड ऑप्शन भी तो अवेलेबल है. आप कैंपस की सेफ्टी को इम्प्रूव करो, आप बेटर लाइटिंग कर सकते हो, आप पेट्रोल्स इंक्रीज कर सकते हो ताकि वहाँ पे और सिक्योरिटी रहे. यस, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम आप कर सकते हो, बट यू आर जस्ट स्टक बिटवीन द 2 ऑप्शंस. So it is also called black and white facility. Fallacy. Yes. So next comes appeal to ignorance. Appeal to ignorance, argumentum ad ignoratium. Remember the other names as well. यहाँ पे क्या होता है, आप किसी चीज़ को ट्रू मानते हो, आप किसी चीज़ को ट्रू मानते हो क्योंकि अभी तक उसे किसी ने भी फॉल्स नहीं कहा, या फिर आप किसी चीज़ को फॉल्स मानते हो
क्योंकि अभी तक उस चीज को किसी ने भी ट्रू नहीं कहा। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो प्रूफ दैट गॉड डजंट एग्जिस्ट। ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है कि भगवान नहीं है। यस, किसी ने तो प्रूव नहीं किया कि भगवान नहीं होते, इसलिए हम मान लेते हैं कि भगवान होते हैं। ओके, अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो यू कैन रीड रिगार्डिंग द यूएफओ कि कभी कोई प्रूव नहीं कर पाया कि यूएफओ ने विजिट अर्थ पे नहीं किया, तो इसका मतलब है कि जब प्रूव नहीं कर पाए तो इसका मतलब कि विजिट किया होगा। तो यहां पे फॉल्स और ट्रू की बात होती है। इट incorrectly shifts the burden of proof, suggesting that lack of evidence support a particular conclusion. Evidence की कमी की वजह से आप किसी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहे हो, आप किसी कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि वहां पे लैक ऑफ एविडेंस है। यस, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो या सपोर्ट कर रहे हो। तो अपील टू इग्नोरेंस, ये भी अभी रिसेंटली फैलेसी पूछी गई थी, एनेक्डोटल फैलेसी। एनेक्डोटल मीन्स व्हाट? रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस। यहाँ पे क्या होता है, बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस यू जस्ट अप्लाई दैट knowledge or that experience, you draw a conclusion based on it and you apply that to the broader population. Okay, yeah, or you can say general population. आप उस चीज को जनरल पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देते हो। अगर वो चीज आपके साथ हुई है तो आप उसको जनरल पे अप्लाई कर देते हो। यू कैन से दैट इट गोज फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, यू कैन से दिस। सो यूजिंग अ पर्सनल एक्सपीरियंस और स्टोरी एज एविडेंस फॉर अ क्लेम। जैसे कि अगर आपने देखा कि मिस्टर ए एक पर्सन है जो बहुत स्मोक करता था, बट स्मोक करने के बाद भी उसकी एज 90 ईयर्स थी, तो आप कहते हो कि अच्छा, स्मोक करना तो बैड नहीं है, स्मोकिंग इज नॉट बैड फॉर हेल्थ, जो भी स्मोक करेगा उसकी 90 ईयर्स तो एज होगी। बट क्या ये ट्रू है? कैन यू अप्लाई द पर्सनल एक्सपीरियंसेस टू द जनरल पॉपुलेशन? नो, यू कैन नॉट। सो इट इज अ फैलेसी. So anecdotes can be unreliable. We can misperceive our experiences. Clear? So these were the 19 fallacies I have tried to cover in less time because you have exams. तो आप इन fallacies को जरूर पढ़ के जाना, and I will also try to discuss the PYQs. If you haven't joined our Telegram channel, do join it. There are 930 plus learners there. Thank you. See you again in the next video. Do subscribe my channel, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी then do comment and do give your feedback in the comment section. Okay, thank you, bye bye.